حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. ان جنگی قیدیوں میں بندیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا تھا. جب قیدیوں کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا اس میں وہ عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا. وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کے پاس چلی جاتی, اس بچے کو اٹھا لیتی اور اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی, اپنا دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا ہے, یہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی پاگل ہے, اتنی دیوانی ہے کہ جس کا بچہ پاتی ہے اٹھا کر اپنا دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے صحابہ اچھا یہ بتاؤ اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے, اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر میں یہ کہوں کہ آگ جلاؤ اور آگ جل جائے, پھر میں یہ کہوں اے عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول جو عورت اتنی محبت کرتی ہو اپنے بچے سے کہ وہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے دودھ پلانے لگتی ہو, اس کا اصلی بچہ اگر اس کو مل جائے تو یہ عورت اس بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ ارے آگ میں اگر اس کا بچہ جلنے لگے تو یہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر اس بچے کو بچائے گی, اپنے آپ کو جلا لے گی لیکن بچے کو نہیں جلنے دے گی. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ جتنی محبت جتنا رحم اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہے, اللہ رب العالمین بھی اپنے گناہگار بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے مسلم شریف کے, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ رب العالمین کو اپنے گناہگار بندے سے اس عورت سے بھی کہیں زیادہ گناہ محبت ہوتی ہے, وہ رحم کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے بھی جہنم کے اندر جائیں, جیسے یہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ آگ میں ڈالا جائے اسی طریقے سے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ آگ میں جائے. لیکن کیا کروں, گناہ کر کر کے وہ خود آگ کا شکار ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں, وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے کیا کروں. اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اللہ نے قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ 20 سے زیادہ بار 20 سے زیادہ بار اللہ نے قرآن میں اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے, اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے. یا عبادی, جانتا ہے میرے بندے گناہ کرتے ہیں پھر بھی کہہ رہا میرے بندو. یا عبادی, میرے بندو, ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا تم نے گناہ کیا جاؤ یہاں سے ہٹو ہم تم کو اپنا بندہ نہیں مانتے, نہیں, ان کو بھی کہہ رہا یا عبادی اے میرے بندو. 20 سے زیادہ بار اس نے کہا یا عبادی میرے بندو, اور ایک جگہ تو اس نے یہاں تک کہہ ڈالا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ آئے میرے بندو, یا عبادی آئے میرے بندو. اور کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے گناہگار بندو جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کیے ہوں, جنہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر لیے ہو, وہ میرے بندو جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں میرے وہ بندو سنو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ ان بندوں کو بھی خوشخبری سنا رہا ہے,
मेरे बंदो अगर गुनाह किए हैं और बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने नफ्सों पर अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। आज भी तुम तौबा करोगे, मेरी तरफ पलट कर आओगे, मुझसे रुजू करोगे, तौबा करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह को आज भी माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि मेरे बंदो जितने भी गुनाह लेके आओगे मैं चाहूं माफ करना तो कर सकता हूं, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। साफ तौर पर कह दिया, शिर्क लेकर आओगे तो हम समझौता नहीं है, और गुनाह के लेकर आओगे तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क के साथ समझौता नहीं। मांगो तो सही, पुकारो तो सही। मांगने वाला बंदा, पुकारने वाला बंदा, अल्लाह से तौबा करने वाला बंदा, रुजू करने वाला बंदा अल्लाह को प्यारा है। अल्लाह कहता है मांगो, अच्छा लगता है जब मेरा बंदा कोई मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है। और अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, तौबा करना छोड़ दोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगना मुझसे छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। और ऐसी कौम को हम लाएंगे इसी जमीन पर जो गुनाह करेगी और फिर तौबा करेगी और फिर मुझसे पुकारेगी, मुझसे रुजू करेगी तो मैं उसके गुनाह को माफ करूंगा। मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझे पुकारें, मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझसे मांगे, मुझे वो बंदे अच्छे लगते हैं जो मेरे दर पर अपनी पेशानी को झुकाएं और मुझसे मांगे। अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुनाहगार बंदे से। अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़िहि बिवलदिहा। ये माँ जिस तरह अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, अल्लाह भी अपने बच्चे को आग में डालना नहीं चाहता। लेकिन बंदे गुनाह कर करके खुद आग के करीब जाना चाहते तो मैं क्या करूं? सोचो, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, ठीक है, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, ठीक है, हजारों तकरीरों के बावजूद भी जहेज जैसी लानत मुआशरे से खत्म नहीं हो रही है। 20 साल का तो तकरीबन तजर्बा हमें है, बिहार और बंगाल में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चीख चीख कर देख लिया, लेकिन जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, हमारी बेटी या हमारी बहन जब मायके से ससुराल जाती है, हमारी बहन हमारी बेटी जब शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है, उसको जो जहेज देते हैं उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं, उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं। हमारी बेटी हमारी बहन ससुराल में अपने ससुराल के सामान की उतनी हिफाजत नहीं करती जितनी हिफाजत अपने मायके से मिलने वाले सामान की करती है। ये फितरत है, ये उसकी फितरत के अंदर ये चीज भरी हुई है। अपने मायके के सामान की ज्यादा हिफाजत करती है लड़की, बेटी, बहन। घर की सफाई करते करते, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2 कांच के बर्तन है, 2 कांच के बर्तन है, सफाई करते करते वो दोनों कांच के बर्तन जमीन के ऊपर गिर गए, एक टूट गया, चकनाचूर हो गया और एक बर्तन बच गया, एक गिलास बच गया और एक टूट गया कांच का। हमारी बहन या हमारी बेटी किस बर्तन की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? आप लोगों का जवाब यही होगा, आप लोगों का जवाब यही होगा, जो बर्तन बच गया हमारी बेटी हमारी बहन उस बर्तन की हिफाजत करेगी, जो टूट गया उसका क्या करेगी? इकट्ठा करेगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी। अगर हमारा बच्चा बिस्तर पे बैठा है तो हमारी बीवी कहेगी नहीं बेटा बिस्तर पे रहना, अभी नीचे मत उतरना, कांच का कोई टुकड़ा तेरे पैर में चुभ जाएगा, बेटे बिस्तर पे रहना, उसको आने नहीं देगी। फिर वो एक एक तिनका साफ करके उसको उठाएगी और डस्टबिन में जाकर डाल देगी, डस्टबिन में जाकर डाल देगी या कूड़ेदान में फेंक देगी, नाली में बहा देगी। क्यों? क्योंकि वो उसके किसी काम का वो बर्तन नहीं रह गया, जो काम का है उसको उठाकर रख दिया, उसकी हिफाजत की है। आइए जरा इसके उल्टे एक नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। एक मां के 2 बेटे हैं, एक मां के 2 बेटे हैं, एक बेटे की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 24 साल है,
20 साल का बेटा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमाता है, वो अपनी माँ को खिलाता है, उसकी भी शादी हो चुकी है, वो अपने बीवी को खिलाता है, अपने बच्चों को पालता है, अपनी माँ को भी खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसी माँ का दूसरा बेटा जिसकी उम्र 24 साल है, उसको फालिज मार गई, उसको लकवा मार गया, उसके दोनों पैर बेकार हो चुके हैं, उसका पूरा धड़ बेकार हो चुका है, उसकी जबान लड़खड़ाती है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है, उसके हाथों में भी फालिज मार चुकी है, वो हाथ से खा नहीं पाता है, वो अपने कपड़े धुल नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है, वो बाथरूम तक नहीं जा पाता है, पेशाब बिस्तर पे करता है, लेटरिन बिस्तर पे करता है। इस अपाहिज की वजह से कोई भी उसकी शादी भी नहीं कर रहा है और कोई लड़की उस अपाहिज से शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। बताओ ईमानदारी के साथ, बर्तन 2 गिरे, एक बच गया, टूट गया, हमारी बेटी ने बचे हुए महफूज और सही सालिम बर्तन को उठाकर रख दिया, जो टूट गया था उसको उठाकर फेंक दिया क्योंकि वो बर्तन किसी के लायक नहीं था। लेकिन ये बेटा जो 24 साल का है, जो न मेहनत करता है, न मजदूरी करता है, न उड़ सकता है, न बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब कर सकता है, न पायखाना कर सकता है, ईमानदारी के साथ बताओ ये माँ पर बोझ है या नहीं है? अपने भाई पर भी बोझ है। लेकिन क्या कोई माँ इस 24 साल के बेटे को अपने घर से निकाल के बाहर कर देगी? क्या कोई माँ इस 24 साल के बच्चे को घर से बाहर फेंक देगी? नहीं। दूसरा एक और नजरिया, एक 20 साल का बेटा है जो कमाकर लाता और खिलाता है, और एक 24 साल का है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। माँ इन दोनों बच्चों में से किसको ज्यादा प्यार करेगी? माँ इन दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करेगी? माँ इन दोनों बच्चों में से किसको ज्यादा मोहब्बत करेगी? अब आपका जवाब ये होगा कि माँ जितनी ज्यादा मोहब्बत इस बच्चे से करेगी जो 24 साल का है, जो बेचारा बिस्तर पर लेटा हुआ है, उतनी मोहब्बत वो अपने 20 साल के बेटे से नहीं करेगी जो कमा कर लाता है। भले ही वो माँ को खिलाता है, लेकिन माँ उस 20 साल के बच्चे का पैजामा उतार कर नहीं कहेगी कि बेटा पेशाब करके आओ, उसकी गंदगी को साफ नहीं करेगी, माँ उसके कपड़े भी नहीं बदलाएगी, माँ उसको अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाएगी। लेकिन माँ की इस मोहब्बत को देखो कि जो 24 साल का बेटा है, माँ उसका कपड़ा भी उतारेगी, उसको पेशाब भी कराएगी, उसकी पेशाब की जगह पर पानी भी डालेगी, वो लेटरिन कर लेगा तो माँ उसकी गंदगी को साफ करेगी, उसकी गंदी जगह को भी, गंदगी से भरी हुई जगह को भी वो साफ करेगी। अगर उसके जबान से थूक और लुआब आ गया तो माँ अपने आंचल से, माँ अपने दुपट्टे से उसके थूक को और उसके पसीने को पोंछेगी और साफ भी करेगी। माँ उसको उठाएगी, अपने सीने से लगाएगी, रोटी का लुकमा तोड़ेगी और उसको खिलाएगी भी माँ, और उसको तसल्ली भी देगी। तसल्ली देते देते चीखते चीखते कहेगी बेटा घबराना नहीं, पूरी जिंदगी तू किसी पर बोझ नहीं है, बेटा मैं हूं ना, बेटा मैं हूं तो मैं तुझे जिंदगी भर खिलाऊंगी, बेटे तू फिक्र मत करना, तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है। माँ के दिल के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है? माँ के दिल के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया है? इस नेमत को याद करो मेरे प्यारे साथियों। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात को फरामोश कर गए हैं। आज हम देखते नहीं है कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि फरमाया कि तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन उसने एक नेमत ऐसी दी है, उस नेमत को उतारते वक्त उसने एहसान भी जता दिया। इतनी नेमतें हैं कि गिन नहीं सकते, लेकिन इन किसी भी नेमत पर उसने एहसान नहीं जताया। लेकिन उसने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो मुसलमानों पर एहसान जताया, और एहसान जताते हुए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला
اللہ का बहुत बड़ा एहसान है मोमिनों के ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब भेजा तो अल्लाह ने इस नेमत पर एहसान जताया। कितनी बड़ी नेमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह रहमान है, रहीम है, उसने इस नेमत को भी रहमत बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह की आमद हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, और इस नेमत को भी रहमत कहा है। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें जो रसूल दिया है ये सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक होता है रहम करने वाला, एक होता है जालिम जुल्म करने वाला, और एक होता है प्योर जुल्म। इसी तरीके से एक होता है रहम करने वाला और एक होता है मुकम्मल रहमान। एक होता है रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला ने नबी के बारे में यह नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करने वाले हैं, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा हमने तुम्हें जो रसूल दिया है वो इतनी बड़ी नेमत है कि वो रहम नहीं करता, सरापा खुद रहमत है वो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सरापा रहमत है, मोमिनों के लिए भी रहमत, काफिरों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, हैवानों के लिए भी रहमत, वो सरापा रहमत है।